Good morning, students. Welcome back to economics lecture. But before starting the lecture, I would request you all, please subscribe our New English channel and press the bell icon so that जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको इस चीज का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जो है वीडियो को देख पाओगे. Okay. Now we'll go with our lecture, students. In the last lecture, we have started with the second chapter of economics, that is the utility analysis. Now in that chapter, in last lecture, we have discussed about the meaning, definition, features and types of utility. Now we'll proceed with the next topic of our chapter, that is the concepts of utility. Now first of all, let's see what do you mean by utility, which we have discussed in the last lecture. Utility, what is utility? Utility is a want satisfying capacity of a commodity. So whenever any commodity possesses the capacity to satisfy a want, that is the meaning of the utility. Now the concepts of utility. In concepts of utility, there are two concepts: total utility and marginal utility. Now what do you mean by total utility and what do you mean by marginal utility? We'll discuss one by one. Now before discussing the concepts of utility, it is assumed here that utility can be measured in numbers. We can measure utility in numbers so that utility can be compared. Now what do you mean by total utility? Now total utility means, I have already written here, utility derived from all units. The utility which we get from the consumption of all the units, when we combine or aggregate all those units, whatever utility we get is the total utility. Now suppose, let me give you an example. Suppose we have consumed 5 units of chocolate. We have consumed 5 units of chocolate. 1, 2, 3, 4, 5. The utility you got from the first unit, some number of utility you got from the second, from the third, from the fourth, from the fifth. Now when we combine the utility derived from all the 5 units, the total we get will be the total utility. That is the summation of all the units. So that is the meaning of total utility. So what is total utility? When we have given some commodity for consumption, when we combine the utility derived from all those units, that combined utility we get is known as the total utility. Now next is the marginal utility. Now marginal means additional. Now whenever we consume every additional unit, the utility we get from the every additional unit is known as a marginal utility. Now in the example we have taken, we have consumed 5 units of chocolate. Now when you have consumed the first unit of chocolate, suppose you have got 8 utility, okay, that is a marginal utility. You have consumed the second unit, you have got some utility, suppose it is 6, that is a marginal utility. You have consumed the third unit, you got some utility, suppose 5 units. So when you consume every additional unit, the utility you are deriving from every additional unit is known as a marginal utility. So we can see here that total utility will be summation of all the marginal utilities. Marginal utility means utility derived from every additional unit. Now we have consumed 5 units of chocolate. When we will total up of all the 5 units, whatever we get will be the total utility. So these are the concepts of utility. Okay. This question may come in the exam for definition for 2. Now let's proceed with our next topic, that is the law of diminishing marginal utility. Now what do you mean by marginal utility? We have already seen कि utility which we derive from the additional unit. हर additional unit से जो हमको utility मिलती है उसको marginal utility बोलते हैं. और ये law of diminishing marginal utility में हमको क्या बताया गया है कि see from the name itself it indicates law of diminishing. Diminishing मतलब जो कम होते जाता है. क्या कम होते जाता है? Marginal utility. Now the law of diminishing marginal utility को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, प्रपोज किया था. इट वाज प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गोसेन. ओके, ही इज एन इकोनॉमिस्ट. उन्होंने इस लॉ को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इस लॉ को प्रोफेसर गॉसेन फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं या फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन भी इसको बोलते हैं. नाउ ये दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर गॉसेन, but it was discussed in detail by Dr. Alfred Marshall. ये भी एक बहुत ही renowned economist थे. इन्होंने ये लॉ को डिटेल में डिस्कस किया अपनी बुक
प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि पब्लिश हुई थी 1890. ओके, so what is the law? Who has introduced this law of DMU? Law of DMU was introduced by प्रोफेसर गोसेन, इसलिए इसको फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन भी बोलते हैं. लेकिन इस लॉ को डिटेल में डिस्कस किसने किया? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल. और इस लॉ के बारे में उन्होंने जो डिटेल में डिस्कस किया है वो कौन सी बुक में किया है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कब पब्लिश हुई थी? इन द ईयर 1890. अभी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, अब ये लॉ ऑफ डीएमयू क्या है, या व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लॉ, लेट्स सी. नाउ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, जो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये यूनिवर्सल इन नेचर है. यूनिवर्सल इन नेचर या यूनिवर्सल इन कैरेक्टर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल इन नेचर और यूनिवर्सल इन कैरेक्टर? मीन्स ये जो लॉ है ये सब जगह एप्लीकेबल होगा, वेदर इट इज इंडिया और वेदर इट इज सम अदर कंट्री, दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर. मतलब ये लॉ को हम हर जगह प्रूव कर सकते हैं. क्यों ये हर जगह प्रूव करना पॉसिबल है? बिकॉज दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर. ये किसके बिहेवियर पर बेस्ड है? कंज्यूमर के बिहेवियर पर. कंज्यूमर मतलब जैसे आप और हम जब भी कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो वी आर कंज्यूमर्स, तो हमारे बिहेवियर पर ये लॉ बेस्ड है. इसलिए ये कैसा लॉ है? यूनिवर्सल इन नेचर है. यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब होता है जिसको हर जगह प्रूव किया जा सकता है. अभी यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर. नाउ व्हाट इज द कंज्यूमर बिहेवियर? कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है यूटिलिटी को लेकर के? अब देखिए यहाँ पर दिया है यूटिलिटी डिमिनिशेस. यूटिलिटी क्या हो रही है? डिमिनिश हो रही है, मतलब कम होते जा रही है. क्यों कम हो रही है? ड्यू टू रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब भी होता है कम. इंटेंसिटी ऑफ वांट. इंटेंसिटी का मतलब होता है अर्जेंसी. इंटेंसिटी ऑफ वांट में अर्जेंसी और नीड ऑफ वांट. जैसे जैसे हमारी वांट की अर्जेंसी या नीड कम होते जाएगी, यूटिलिटी भी कम होते जाएगी. Now, suppose you are very thirsty. You have come from outside and आपको बहुत प्यास लगी है. You are very thirsty. Now, when you are offered first glass of water, you will consume that glass of water and you will feel much better. Okay? Now, जब आपको second glass offer किया गया है, तो first glass के comparison में second glass की जो urgency है या need है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो आपकी यूटिलिटी क्या हो गई? थोड़ी सी कम हो गई. अगर आपको और एक ग्लास पानी का ऑफर किया गया है तो अगेन इन कंपैरिजन टू फर्स्ट ग्लास, थर्ड ग्लास की जो वांट है या जो नीड है या जो अर्जेंसी है वो क्या हो गई? कम हो गई. तो यहाँ पर कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है कि जैसे जैसे हमारी वांट की जो इंटेंसिटी है या जो अर्जेंसी है या जो नीड है, जैसे जैसे वो कम होती जाती है, हमारी यूटिलिटी भी कम होती जाती है. दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन द लॉ ऑफ डीएमयू बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल. यही चीज को डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू हमको एक्सप्लेन किया है. नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू. अभी स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू क्या है? द एडिशनल बेनिफिट. नाउ एडिशनल बेनिफिट, मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट. तो यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर भी दिया है कि द एडिशनल बेनिफिट. एडिशनल बेनिफिट का मतलब है यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी. एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव, जो पर्सन को मिल रहा है, मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी पर्सन को मिल रही है फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन अ स्टॉक ऑफ अ थिंग. अभी स्टॉक ऑफ अ थिंग का मतलब क्या है? स्टॉक ऑफ अ थिंग का मतलब है यहाँ पर हमको एक ही कमोडिटी लेना है, अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कमोडिटीज नहीं लेना है, एक ही कमोडिटी लेना है. और जब वो कमोडिटी के स्टॉक में से आप एक एक कमोडिटी को लेकर के कंज्यूम करते जाओगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है? डिराइव फ्रॉम द गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस. डिमिनिशेस का मतलब होता है कम होना. दैट मीन्स फ्रॉम अ गिवन स्टॉक ऑफ अ थिंग, आपको जो एक स्टॉक दिया गया है, सपोज 8 एप्पल्स, 10 एप्पल्स, व्हाटएवर, जब वो स्टॉक में से आप एक एक लेकर के कंज्यूम करते जाओगे एंड एज यू कंज्यूम वन यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, जो आपको उसमें से मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है वो क्या होते जाएगा? डिमिनिश होते जाएगा.
with the every increase in the stock that he already has. जो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है उसमें से जब आप कंजम्पशन के लिए एक एक यूनिट लेके कंज्यूम करते जाओगे एंड एज एंड व्हेन यू विल गो ऑन कंज्यूम द यूनिट, आपकी मार्जिनल यूनिट क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी. दिस इज व्हाट द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इज, जो हमने हमारे एग्जाम्पल में भी देखा कि अगर आपको ग्लास ऑफ वाटर फर्स्ट दिया गया है तो यूटिलिटी आपकी कैसी है, बहुत हाई है. लेकिन जैसे जैसे आपको सेकेंड ग्लास थर्ड ग्लास दिया गया है तो आपकी यूटिलिटी क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है. सो दिस इज व्हाट द Dr. Alfred Marshall has explained in this law. So let's once see what actually we have discussed now. We have discussed about the concepts of utility, then law of diminishing marginality. This law of diminishing marginal utility is given by Professor Gauss, and that's why it is also known as first law of Gauss. But this law was discussed in detail by Professor Dr. Alfred Marshall. कौन सी बुक में उन्होंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. ये बुक कब पब्लिश हुई थी, 1890 में. अभी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने जो लॉ एक्सप्लेन किया है वो लॉ का नेचर कैसा है, यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल का मतलब होता है कि ये जो लॉ है हर जगह एप्लीकेबल होगा, चाहे हम कहीं पर भी चले जाएं. ऐसा क्यों है, ये हर जगह हम प्रूव क्यों कर सकते हैं, बिकॉज ये किसके बिहेवियर पर बेस्ड है, कंज्यूमर के बिहेवियर पर बेस्ड है. और कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, जैसे जैसे हमारे वांट की अर्जेंसी कम होते जाएगी हमारी यूटिलिटी भी कम होते जाएगी. सो दिस इज व्हाट रिटन हियर, यूटिलिटी डिमिनिशेस, यूटिलिटी कम होते जाती है क्योंकि हमारी इंटेंसिटी ऑफ वांट क्या हो रही है, कम हो रही है. जैसे जैसे हमारी वांट की नीड या अर्जेंसी कम होगी यूटिलिटी भी कम होगी. ओके, नाउ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ. द स्टेटमेंट ऑफ लॉ हमको क्या समझा रहा है, द एडिशनल बेनिफिट, एज आई टोल्ड यू, एडिशनल बेनिफिट मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो कि कंज्यूमर को मिल रहा है, विच अ पर्सन डिराइव, मतलब जो उसको मिल रहा है, जो भी उसको स्टॉक ऑफ अ थिंग दिया गया था, वो जो एडिशनल बेनिफिट है वो क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है. With every increase in the stock, जो भी उसके पास स्टॉक ऑलरेडी था, जब उसमें से वो एक एक यूनिट लेकर के कंज्यूम कर रहा है, और with the consumption of every unit, his marginal utility goes on diminishing. So this is what the Dr. Alfred Marshall has explained the law of Davy. Now the statement of law we have discussed. Now what statement of law is telling us? The consumer tries to satisfy single want at a time. Consumer tries to satisfy single want at a time. एक ही want को consumer एक बार में पूरी तरह से satisfy करने की कोशिश करता है. This will be very very clear with the help of a schedule which I will explain you on. Now अभी as the consumer goes on, जैसे जैसे consumer यूनिट्स को कंज्यूम करते जाता है, जो भी उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, हमने ऑलरेडी देखा व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल बेनिफिट. जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, व्हाट इज हैपनिंग टू दैट मार्जिनल यूटिलिटी व्हिच ही डिराइव्स विद द कंज्यूम, marginal utility derived by the consumer from the successive unit. Successive means additional unit of a particular commodity diminishes. So simple words में law ये है, law क्या बोल रहा है कि कंज्यूमर एक ही वांट को एट अ टाइम पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, एंड एज द additional unit he is consuming, his marginal utility goes on diminishes. Okay, now the law states, what the law states, the more we have of a thing, जितनी ज्यादा कोई भी चीज हम लेंगे, the less we want to have more of it, उतना ही हमको कम उसकी नीड होगी. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं हमारी वांट की नीड या हमारी जो इंटेंसिटी है या जो अर्जेंसी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है. सो सिंपल वर्ड्स में लॉ ऑफ DMU क्या बताता है, व्हाट इज एक्सप्लेन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, कि जैसे जैसे हम कोई भी कमोडिटी के यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे, जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, एवरी एडिशनल यूनिट के साथ में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है. ये मार्जिनल यूटिलिटी कम क्यों होगी, क्योंकि हमारी वांट की इंटेंसिटी भी कम होती है. ओके, so this is what the statement of law is in simple words. Now let's see the schedule. Now schedule showing marginal utility. Now ये schedule है जो हमको दिखा रहा है कि marginal utility किस तरह से react होती है with the increase in the consumption. अभी यहाँ this column units of commodity, and in this column we have shown marginal utility.
Now units of commodities may suppose we are taking oranges. Okay. Now we here in the schedule you can see कि we have taken 6 oranges, 1 2 3 4 5 6. Now as we go on consume, जैसे जैसे हम ये यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि जब हमने फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑरेंज कंज्यूम किया वी गॉट 8 मार्जिनल यूटिलिटी. हमको पहला यूनिट जब हमने ऑरेंज का कंज्यूम किया तो हमको कितनी यूटिलिटी मिली? 8 यूनिट्स यूटिलिटी मिली. बट उसके बाद में जब आपने सेकेंड ऑरेंज कंज्यूम किया, सेकेंड ऑरेंज खाया, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? 6 हो गई. मीन हम यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट की कंपैरिजन में सेकेंड यूनिट में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है? इट हैज रिड्यूस्ड. वो क्या हो गई है? कम हो गई है. सिमिलरली व्हेन वी आर कंज्यूमिंग द थर्ड यूनिट, utility comes to marginal utility comes to 4, means again it is falling. Okay, marginal utility क्या हो रही है आपकी? fall हो रही है, diminish हो रही है, कम हो रही है. फोर्थ यूनिट आपने कंज्यूम किया, अगेन marginal utility falls to 2 यूनिट. अब हम देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट जब आपने कंज्यूम किया तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थी 8 यूनिट. सेकेंड यूनिट आपने कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिमिनिश हो गई, फॉल हो गई, कम हो गई. 8 यूनिट से कहां पर आ गई? 6 यूनिट्स. जब आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? 4 यूनिट्स हो गई. फोर्थ यूनिट जब आपने कंज्यूम किया तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? 2. मींस हम देखेंगे कि जो ये लॉ है अल्फ्रेड मार्शल का जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम करते जा रहे हैं हमारी यूटिलिटी क्या हो रही है? कम होती जा रही है. मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है. मार्जिनल यूटिलिटी कम क्यों हो रही है? बिकॉज हमारे वांट की जो नीड है, इंटेंसिटी है, अर्जेंसी है, वो क्या हो रही है? कम हो रही है. अभी हम देखेंगे कि अगर फोर्थ यूनिट के बाद भी हम कंजम्पशन कंटिन्यूअस रखते हैं, means now at the fourth point you can see the utility from 8 it has reached to 2. Now even if after the fourth unit if we will continue with the consumption our marginal utility will become 0. मतलब यहाँ पर अगर हम ये यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमको इसमें से कुछ भी यूटिलिटी मिलने वाली नहीं है, बिकॉज अवर वांट इज फुल्ली सेटिस्फाइड. यहाँ पर हमारी जो वांट है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुकी है और इसलिए ये यूनिट कंज्यूम करने पर जो हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो क्या हो जाएगी? 0. नाउ अगर 0 होने के बाद भी इफ वी कंटिन्यू विद कंजम्पशन, अगर हम फिर भी कंजम्पशन करते हैं तो हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? इट मार्जिनल यूटिलिटी विल बिकम नेगेटिव. वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. नेगेटिव या जिसको डिसयूटिलिटी बोलते हैं, मतलब आपको इसमें से कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी बल्कि वो नेगेटिव इफेक्ट दिखाना शुरू करेगी. सो अल्फ्रेड मार्शल ने जो है स्केड्यूल में हमको क्या एक्सप्लेन किया है कि हम एक ही यूनिट लेंगे ऑरेंजेस. मैंने आपको पहले बताया था कि आपको एक ही सिंगल वांट को आपको एट ए टाइम सेटिस्फाई करना है, मतलब हमको एक ही कमोडिटी यहाँ पर लेनी है. सपोज वी हैव टेकन ऑरेंजेस, 6 यूनिट्स लिए हैं हमने ऑरेंजेस के. ओके, और यहाँ पर हमने देखा कि जैसे जैसे कंज्यूमर का कंजम्पशन बढ़ रहा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है. और अगर उसके बाद भी वो कंजम्पशन कंटिन्यूअस रखता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है. तो यहाँ पर हमने देखा कि ये स्केड्यूल हमको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? द अबाउट टेबल शोज कि MU का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग. हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है. जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर एरो मार्क से समझाया है कि जैसे जैसे आपका यूनिट का कंजम्पशन बढ़ा, आपने फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑरेंज कंज्यूम किया यू गॉट सम यूटिलिटी, आपने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया यू गॉट सम यूटिलिटी, आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया यू गॉट सम यूटिलिटी. बट हम देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ को जब हम कंपेयर करेंगे तो एवरी यूनिट के साथ में हमारी यूटिलिटी क्या हो रही है? डिमिनिशेस. इट गोज ऑन डिमिनिशिंग, मतलब कम 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 होते जा रहे हैं. तो यहाँ पर ये टेबल हमको क्या समझा रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? डिमिनिश हो रही है. जैसे जैसे आपका स्टॉक बढ़ रहा है, मतलब फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, जैसे जैसे कमोडिटी का स्टॉक बढ़ रहा है और आप कंजम्पशन कंटिन्यूअस कर रहे हो तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है. एंड एट अ सर्टेन लेवल, एक लेवल पर जा करके अगर हमारा कंजम्पशन कंटिन्यूअस होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रही है? 0. एंड इवन आफ्टर दैट वी
If we keep the consumption continuous, the your marginal utility will become negative, which is also known as disutility. Now in the schedule we have seen कि as we continue with consumption, marginal utility हमारे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है. At a certain point it reaches zero, and even after that we continue with consumption, marginal utility negative या disutility में convert हो जाता है. Now this schedule we have to plot in a diagram. हमको इसको diagram में present करना है. एग्जाम में ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आता है as a law of demand and assumption as per the ओल्ड पेपर पैटर्न. ये 8 मार्क्स के लिए आता था. सो जब ये ऐसा कुछ रहेगा तो लॉ के साथ लॉ एक्सप्लेन करना है, स्केड्यूल एक्सप्लेन करना है, एंड ऑल्सो वी हैव टू एक्सप्लेन द डायग्राम. अब ये डायग्राम में हम देखते हैं कि हमने ये स्केड्यूल को कैसे प्लॉट किया है. नाउ दिस इज द एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे हमने क्या लिखा है, मार्जिनल यूटिलिटी, एंड ऑन द एक्स एक्सिस हमने क्या लिखा है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. जो भी हमने लिया है, हमारा एग्जाम्पल ऑरेंजेस है तो यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस, और वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ ऑरेंजेस 1 2 3 4 5 6, ओके, एंड मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर हमने देखा 2 4 6 8 10 लिखा है. अभी इसके बाद में -2, ये क्वाड्रेंट नेगेटिव है इसलिए -2 यहाँ पर. नाउ लेट्स प्लॉट द पॉइंट्स वन बाय वन. When we have consumed the first unit of orange, हमने फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑरेंज जब कंज्यूम किया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, 8 पॉइंट. सेकेंड हमने कंज्यूम किया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 6. अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि इवन इन द डायग्राम द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स. ये जो मार्जिनल का कर्व का स्लोप है वो कैसा है, डाउनवर्ड्स है, नीचे नीचे आ रहा है, कम कम होते जा रहा है. क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हमारे यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है, हमने ऑलरेडी शेड्यूल में डिस्कस किया है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है. नाउ व्हेन वी हैव कंज्यूम्ड द थर्ड यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी इज 4. व्हेन वी हैव कंज्यूम्ड द फोर्थ यूनिट, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 2 हो गई. और यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हमारी फिफ्थ यूनिट हमने कंज्यूम किया है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है 0 हो गई है. एक्स एक्सिस पर इसको इसने टच किया है, सो योर मार्जिनल यूटिलिटी इज 0. लेकिन अगर इसके बाद भी कंजम्पशन कंटिन्यूअस रहता है, दैट इज द सिक्स्थ यूनिट, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, और हमने ऑलरेडी स्केड्यूल में देखा है कि सिक्स्थ यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, -0. तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जब हमने सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम किया है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है. तो ये शेडेड पोर्शन से वी कैन सी कि मार्जिनल यूटिलिटी हैज बिकम नेगेटिव, व्हिच इज आल्सो नोन एज डिसयूटिलिटी. ओके, so in this way you have to plot this schedule का जो भी डेटा है उसको आपको डायग्राम में प्लॉट करके उसको एक्सप्लेन करना है. एक बार वापस देखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी दिखाया है, एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस दिखाया है. कितने यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस है हमारे, 1 2 3 4 5 6, मार्जिनल यूटिलिटी 2 4 6 8 10. Now here we can see as we go on consume the units one by one, marginal utility curve slopes downward, showing कि marginal utility क्या हो रहा है हमारा, diminishes होते जा रहा है with the increase in the consumption. Marginal utility कम होते जाता है, at a certain level it reaches 0, and after that if we continue with the consumption वो negative या disutility convert हो जाए. So this is what the law of diminishing marginal utility explained by the Dr. Alfred Marshall. उन्होंने यहाँ पर कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बताया है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है कि जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन बढ़ते जाती है, हमारी किसी भी चीज़ की वांट क्या होती जा रही है, कम कम होते जा रही है. लेकिन अभी इस लॉ को प्रूव करने के लिए हमको कुछ कंडीशंस या कुछ सिचुएशंस को एज्यूम करना पड़ेगा, तभी ही हम लॉ को प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज इसको प्रूव करना पॉसिबल नहीं है. सो आफ्टर द लॉ ऑफ बीएनईयर द नेक्स्ट इज द assumptions ऑफ लॉ ऑफ बीएनईयर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय assumption? assumption का मतलब होता है कंडीशंस और सिचुएशंस जिसको हमको एज्यूम करना है कि अगर ये ऐसी होगी तो ही लॉ को ऑपरेट किया जा सकता है, तो ही लॉ को प्रूव किया जा सकता है. ओके, सो लेट्स सी द assumption one by one. Now the very first is of rationality. Now what do you mean by rationality? रैशनैलिटी का मतलब होता है कंज्यूमर का बिहेवियर
रैशनल होना चाहिए। नाउ व्हाट डू मीन बाय दैट? मींस कंज्यूमर शुड बी केपेबल टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ द कमोडिटी। जो भी कमोडिटी आपको दी गई है, आप उसमें से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव कर पाओ, ऐसा कंज्यूमर का बिहेवियर होना चाहिए। मींस यहाँ पर हम दो एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज वी हैव इन आवर एग्जांपल वी हैव टेकन ऑरेंजेस, ओके। नाउ यहाँ पर 6 यूनिट ऑफ ऑरेंजेस लिए हैं। नाउ इफ टू बी दे हैव गिवन अ फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑरेंज। अभी फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑरेंज मैंने हाफ खाया है एंड हाफ आई हैव थ्रोन अवे, मींस दैट इज नॉट अ रैशनल बिहेवियर। इसमें क्या हो गया, हमारी कमोडिटी को मैंने पूरा कंज्यूम नहीं किया है, मैंने उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश नहीं की है, आधा कंज्यूम किया है और आधा वेस्ट किया है, तो दैट इज नॉट द रैशनल बिहेवियर। और अगर ऐसा होगा तो देन इन दैट केस मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी। Whatever law is saying कि as we continue with the consumption, marginality क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा marginality कम होगा, लेकिन अगर हमारा बिहेवियर रैशनल नहीं होगा तो marginality कम नहीं होगी और लॉ को प्रूव नहीं किया जा सकता। Now the another example here we can take, if suppose a person is under the effect of some drugs, suppose a person is alcoholic, अगर हमने किसी अल्कोहलिक पर्सन को लिया है और उसके बिहेवियर को अगर हम देखते हैं तो उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं होगा। मींस ही इज अंडर द इम्प्रेशन ऑफ सम ड्रग, किसी ड्रग के उसने जो कंज्यूम किया है उसके इफेक्ट की वजह से उसकी मार्जिनलिटी कम नहीं होगी, बिकॉज वो उसका जो बिहेवियर है या जो वो पर्सन है वो नॉर्मल नहीं है। तो सबसे पहला एजम्पशन जो हमको लेना है ये लॉ को प्रूव करने के लिए कि पर्सन कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब है कि उसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि वो कमोडिटी में से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव कर पाए। नेक्स्ट इज कार्डिनल मेजरमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनल मेजरमेंट? कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब है कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाए, हमको ऐसा एज्यूम करना है। क्यों हमको ऐसा एज्यूम करना है? क्योंकि अगर हम यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर हमने हमारे स्केड्यूल में देखा कि फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो इतना यूटिलिटी मिला, सेकंड किया तो इतना यूटिलिटी मिला, मतलब हम यहाँ पर कंपेयर करें कि फर्स्ट यूनिट में से इतना मिला, सेकंड यूनिट में से इतना मिला। ये कब पॉसिबल हुआ? जब हम यूटिलिटी को किस में एक्सप्रेस कर पाएंगे, कार्डिनल नंबर्स में। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पशन हमको क्या लेना है कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा हमको एज्यूम करना है, ताकि जब हम उसको नंबर्स में एक्सप्रेस करें तो हम मार्जिनलिटी का कंपैरिजन पॉसिबल हो और लॉ को प्रूव कर पाए। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनिटी? होमोजेनिटी मींस यूनिफॉर्म, सेम। अभी यहाँ पर हम जो भी कमोडिटी लेंगे, नाउ सपोज ऑरेंजेस, अभी हमारे एग्जांपल में हमने ऑरेंजेस लिया है, अभी जितने भी हम ऑरेंजेस लेंगे वो कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस। होमोजीनियस मींस दे शुड बी 100% सेम, साइज, कलर, टेस्ट, एवरीथिंग शुड बी द सेम, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा भी चेंजेस होता है तो कंज्यूमर की मार्जिनलिटी कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। नाउ सपोज एग्जांपल, नाउ इफ वी हैव टेकन ऑरेंजेस, नाउ द फर्स्ट ऑरेंज यू हैव कंज्यूम्ड वाज नॉट स्वीट, इट वाज सोर, ओके। लेकिन जब आपने सेकंड ऑरेंज कंज्यूम किया वो बहुत स्वीट था, तो फर्स्ट यूनिट के कंपैरिजन में सेकंड यूनिट जब आपने कंज्यूम किया और वो ऑरेंज अगर बहुत स्वीट है तो मार्जिनलिटी कम होने की वजह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारा लॉ क्या बता रहा है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा मार्जिनलिटी कम हो रही है, लेकिन अगर हमारे यूनिट्स होमोजीनियस नहीं होंगे तो लॉ को ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट असम्पशन हमारा क्या है कि हम जो भी कमोडिटी लेंगे वो कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस, हर मायने में सेम होनी चाहिए, साइज में, कलर में, टेस्ट में, एवरीथिंग शुड बी सेम। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। नाउ कंटिन्यूटी का मतलब है कि हमारा कंजम्पशन कंटिन्यूअस होना चाहिए। नाउ इन अवर एग्जांपल हमने 6 यूनिट्स लिए हैं ऑरेंजेस के। नाउ सपोज आप 2 ऑरेंजेस सुबह कंज्यूम कर रहे हो, 2 ऑरेंजेस यू आर कंज्यूमिंग इन आफ्टरनून एंड 2 ऑरेंजेस यू आर कंज्यूमिंग इन इवनिंग, तो मार्जिनलिटी कम होगी क्या, नहीं होगी। ये लॉ को प्रूव करने के लिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पशन क्या है कि जो भी कमोडिटी हम लेंगे कंजम्पशन के लिए उसका कंजम्पशन कंटिन्यूअस होना चाहिए। एट अ स्ट्रेच हमको वो सारे यूनिट्स को कंज्यूम करना है। Now we have taken the 6 units of oranges, at a stretch one after the another we have to consume all the 6 units and then only consumer के behavior को हम देख पाएंगे कि marginal utility one हर यूनिट के बाद भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कंजम्पशन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की बजाय बढ़ेगी और लॉ को प्रूव करना पॉसिबल नहीं होगा। So next assumption is continuity. After that next is रीजनेबिलिटी।
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबिलिटी? रीजनेबिलिटी का मतलब है जो भी कमोडिटी हम लेंगे इट शुड बी ऑफ अ वेरी नॉर्मल साइज, एकदम नॉर्मल साइज की कमोडिटी होनी चाहिए, ना तो नाइदर इट शुड बी टू बिग नॉर इट शुड बी टू स्मॉल। अभी सपोज आई हैव गिवन यू वाटर टू ड्रिंक विद अ स्पून, is it a reasonable size? It is not a reasonable size. Or I have given you water to drink with a bucket of water, that is also not a reasonable size. तो रीजनेबल साइज का मतलब होता है कि जो भी कमोडिटी हम लेंगे ना तो वो बहुत बड़ी होनी चाहिए ना वो बहुत छोटी होनी चाहिए, इट शुड बी ऑफ अ वेरी रीजनेबल या नॉर्मल साइज का कमोडिटी हमको लेना है। नेक्स्ट इज योर कॉन्स्टेंसी। अभी कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है नो चेंज। जब भी हम ये लॉ को ऑपरेट करेंगे तो इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, ये सारी चीजें कंज्यूमर की कांस्टेंट रहनी चाहिए। इनकम, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, क्योंकि अगर इसमें से किसी में भी चेंज होता है तो मार्जिनलिटी कम होने की बजाय बढ़ जाएगा एंड लॉ को प्रूव करना पॉसिबल नहीं होगा। सो व्हाइल स्टडीइंग द लॉ वी हैव टू अज्यूम कि ये सारी चीजें कैसी रहेंगी, कांस्टेंट। कौन से सारी चीजें या कौन से सारे वेरिएबल्स? इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, ऑल दिस वेरिएबल्स शुड रिमेन कांस्टेंट, उनमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज ऑन डिविजिबिलिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिविजिबिलिटी? जो भी कमोडिटी हम लेंगे इट शुड बी डिविजिबल, ताकि हम उसको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में डिवाइड करके कंज्यूम कर पाए। अगर वो इनडिविजिबल होगा तो लॉ प्रूफ करना पॉसिबल नहीं होगा। सो व्हाट नाउ वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ ऑरेंजेस। नाउ ऑरेंज कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल, जब हम उसका कवर निकालते हैं तो हम ऑरेंजेस को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में यू गेट इट इन अ वेरी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। तो यहाँ पर जो भी कमोडिटी हम लेंगे वो कैसी होनी चाहिए? डिविजिबल होनी चाहिए, मतलब जिसको आप स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर पाओ ताकि उसका कंजम्पशन इजीली पॉसिबल हो और कंजम्पशन के बाद ताकि हम मार्जिनलिटी को कंपेयर कर पाए। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द एग्जाम्पशन इज सिंगल बॉन्ड। जो हमने पहले भी देखा कि ये लॉ में आपको एक ही सिंगल बॉन्ड को पूरी तरह से सेटिस्फाई करना है। मीन्स यहाँ पर हमने जो यूनिट्स लिए हैं वो कौन से हैं? ऑरेंजेस, मतलब एक ही कमोडिटी ले रहा है। नाउ सपोज यहाँ पर 6 यूनिट्स है, आपने एक एप्पल ले लिया, एक ऑरेंज ले लिया, एक मैंगो ले लिया, एक पेरू ले लिया, तो इन दैट वे वी कैन नॉट प्रूव द लॉ ऑफ बीएमयू। यहाँ पर जो भी कमोडिटी होगी वो एक ही होगी, तो यहाँ पर कंज्यूमर अपनी एक ही बॉन्ड को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हमको एज्यूम करना है कि कंज्यूमर इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई दिस सिंगल बॉन्ड एट अ टाइम। सो दीज आर द assumptions। अगर एग्जाम में लॉ पूछा जाता है